Hello, hello. So numerical number 10.2. The following observations were taken at the dumpy level and 4-meter leveling shaft. The instrument was shifted after the fourth and seventh reading. Okay, so your instrument is shifted after fourth and seventh reading. The first reading was taken on a benchmark. These are the reading. What is the 30-meter? The observations were taken at the every 30-meter intervals. Also find out the gradient between the first and last point. Also draw the profile ground, use HI method, and observations are given. Okay. So first of all, draw a page of field book. Sorry, level book. Level book page draw करो, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, और उसके अंदर रीडिंग इनपुट करो. चलो फटाफट. Input the readings in a page of level book. Insert the reading in a first of all draw a page of level book and insert the reading. चलो फटाफट ड्रॉ पेज ऑफ लेवल बुक एंड इंसर्ट द रीडिंग. जिसका हो जाए मुझे चैट बॉक्स में बताओ. अगर आपकी रीडिंग इंसर्ट हो जाते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ. तो हाउ टू इंसर्ट रीडिंग्स इन लेवल बुक पेज. Okay, level is shifted after fourth and seventh reading. तो आपकी फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज इन बैक साइड कॉलम. ओके, आपका फर्स्ट रीडिंग हमेशा कौन से कॉलम में आएगा? बैक साइड के कॉलम में. उसके बाद के जो भी रीडिंग है दे विल बी इन इंटरमीडिएट साइड कॉलम एंड लास्ट रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन इट विल बी इन अ फोर्थ साइड कॉलम. राइट, सो इंसर्ट द रीडिंग. चलो फटाफट इंसर्ट द रीडिंग. Draw a table and insert reading in a level book page.
ड्रॉ टेबल. ओके, टेबल ड्रॉ करो पहले. दिस इज अ टेबल. स्टेशन, chainage, back side, intermediate side, fourth side, HI and RL. This is a table. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ टेबल एंड इंसर्ट द रीडिंग. चलो फटाफट. Okay, insert the reading in a field of page of level book. So this one, this is your table. This is your table. Station, chainage, back side, intermediate side, fourth side, HI and RL. And last is for remark. Okay, फटाफट इंसर्ट द रीडिंग. किसी का नहीं हुआ अभी तक? चलो, एटलीस्ट ट्राई टू इंसर्ट. चलो फटाफट, हो जाए तो टेल मी. ओके, रिंकेश डन. और किसी का? ओके, ओके. और किसी का, और किसी ने किया, डेटा इंसर्ट किया और किसी ने? अगर आपको डेटा इंसर्ट करते नहीं आएगा तो हाउ यू विल be able to calculate a numerical? Okay, first of all you have to make a page of level book, then and only you can able to find, calculate the numerical, right? चलो फटाफट. First of all prepare a page of level book, then only you can able to find the RL or elevations. Okay, so let's see how to insert. So these are your readings. ये है आपके readings, right?
So how to prepare a first of all you have to draw a table. Okay, अभी ये कुछ नहीं लिखना है. Prepare a table. Okay, your chainage is यहाँ पे दिया है. What is your chainage? Your chainage is 30-meter interval. Okay, every 30 meter you have to take reading at every 30 meter in interval. Okay, आपको reading लेना है at every 30 meter interval. Okay, so your chainage is what? Your chainage is equal to 30 meter. Okay, so this is your chainage. तो ये आपका कॉलम है. At the 30 meter interval हर एक reading है आपका 30 meter interval पर. So 0, 30, 60, 90. Okay, so this is your chainage. Now back side, intermediate side, fourth side. What is your back side? Back side means कि कोई भी first reading, any reading of a particular station, it will be it will be in a back side. Okay, it will be insert in the back side, right? So your first reading for first station is equal to 0.565. So that is a reading of your back side reading. Okay, your instrument is shifted after your instrument is shifted after fourth and seventh reading. After fourth and seventh reading, the instrument is shifted after fourth and seventh. So 1, 2, 3, and this is your fourth reading. 5, 6, 7. This one is your seventh reading. Okay. So this reading is the last reading of your first station और last. Okay. तो ये आपका किस में आएगा? इंटरमीडिएट साइड, सॉरी फोर्थ साइड में. ओके, फोर्थ साइड में कौन सा रीडिंग आएगा? बैक साइड में क्या रीडिंग आता है? बैक साइड में कोई भी स्टेशन का पहला रीडिंग, कोई भी स्टेशन का पहला रीडिंग वो आएगा आपका बैक साइड में. ओके, दूसरा क्या होता है आपका? any reading of a particular station, it will be in a back side. Okay, so this first reading is your back side, this reading is your back side, this is your back side. Okay, so this is your back side reading. उसके बाद के सभी रीडिंग्स कौन से कॉलम में आ गए? इंटरमीडिएट साइड में. और आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? इट इज शिफ्टेड एट फोर्थ एंड सेवेंथ रीडिंग. ओके, तो आपका फोर्थ रीडिंग एंड सेवेंथ रीडिंग, जिस वन इज योर सेवेंथ रीडिंग. ओके, तो इस स्टेशन का यहाँ तक आपका फर्स्ट चेंज पॉइंट है, यहाँ पे आपका यहाँ तक आपका सेकंड चेंज पॉइंट है, और यहाँ पे आपका आएगा सेकंड के बाद. ओके, यू हैव टोटल 2 चेंज पॉइंट. ओके, एक तो यहाँ पे आपने इस रीडिंग के बाद चेंज किया, तो दैट वन इज योर चेंज पॉइंट 1 एंड दिस वन इज योर चेंज पॉइंट 2. तो आपके बैक साइड में 3 रीडिंग आएंगे इस स्टेशन का. दिस वन इज योर फर्स्ट स्टेशन. फर्स्ट स्टेशन का फर्स्ट रीडिंग है 0.565, तो वो आपका कहाँ पे आएगा? बैक साइड में. उसके बाद के सभी रीडिंग दे विल बी इन इंटरमीडिएट साइड, और इसी स्टेशन का लास्ट रीडिंग दैट इज योर फोर्थ रीडिंग, बिकॉज आफ्टर फोर्थ रीडिंग you shifted your instrument. Okay, the fourth reading is the last reading for this first station. Okay, so this is your fourth reading, and it will be in a fourth side. Okay, again कोई भी स्टेशन का फर्स्ट रीडिंग आएगा बैक साइड में, उसके बाद के जितने भी रीडिंग आएंगे इंटरमीडिएट साइड में, और उसी स्टेशन का लास्ट रीडिंग वो आएगा आपका फोर्थ साइड में. ओके, यहाँ तक का खत्म. बीच वाले सभी रीडिंग आएंगे इंटरमीडिएट. नाउ यहाँ पे आपका दूसरा. ओके, यहाँ पे हम चलो सपोज हम लोग ग्रीन कलर से दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपके दूसरे रीडिंग यहाँ तक का. तो अगेन फर्स्ट रीडिंग ऑफ दिस स्टेशन इट विल बी अगेन इन अ बैक साइड, उसके बाद के सभी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में, और इसी स्टेशन का लास्ट रीडिंग दैट इज द सेवेंथ रीडिंग, बिकॉज आफ्टर सेवेंथ रीडिंग अगेन वी शिफ्टेड आवर इंस्ट्रूमेंट, राइट? So seventh reading will be in a fourth side column, right? So these are your reading. Sorry, this is not this one is the seventh reading. The seventh reading will be in a fourth side column. Okay. So now यहाँ के बाद again आप change of this one is also a change point. This one is your change point 2. चेंज पॉइंट के बाद का फर्स्ट रीडिंग अगेन बैक साइड, उसके बाद के सभी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड, और उसके उसका लास्ट रीडिंग इट विल बी इन अ फोर्थ साइड. तो ऐसे इंसर्ट करते हैं रीडिंग टेबल के अंदर. ओके, दिस इज अ मेथड टू इंसर्ट रीडिंग इन अ टेबल. दिस इज अ मेथड टू इंसर्ट रीडिंग इन अ टेबल. ओके, तो हमने यहाँ पे सारे रीडिंग टेबल में इंसर्ट कर दिए हैं, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर्थ साइड में. ओके, नाउ आर एल. यहाँ पे आपको आर एल इज इट गिवन टू यू? यस, आर एल इज गिवन टू यू. इफ अगर आपको आर एल नहीं दिया है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अज्यूम योर आर एल.
अगर आपको आर एल नहीं दिया है ना तो यू हैव टू अज्यूम योर आर एल। यहाँ पे हमें आर एल दे दिया है, so no need to assume that is equal to 15.575 meter. Okay, so first reading is taken on a benchmark. On a benchmark, the whose RL is first reading who's taken in on a benchmark and whose RL is 15.575. तो फर्स्ट आरएल इज गिवन टू यू, आपको फर्स्ट आरएल दिया है, ऑलवेज दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है देन यू हैव टू अज्यूम 50 100 वट एवर, ओके यू कैन अज्यूम, बट आपको दे दिया होगा। Okay, so this one is your first RL. Now how to calculate height of the instrument? Height of the instrument is equal to what? Is equal to RL plus backside. RL जहाँ जहाँ backside आएगी वहाँ वहाँ आपकी HI आएगी। Okay, तो यहाँ पे what is your HI? HI is equal to 15.575 plus 0.565, so that is equal to 16.140। कैलकुलेटर लेके बैठो। Okay, नाउ आरएल कैसे कैलकुलेट करना है? एच आई माइनस इंटरमीडिएट साइड, एच आई माइनस इंटरमीडिएट साइड, एच आई माइनस फोर साइड, मतलब 16.14 माइनस 1.25 दैट इज इक्वल टू 14.890, अगेन 16.14 माइनस 1.675 दैट इज इक्वल टू 14.465, 16.140 minus 3.695 that is equal to 1 to 12.45। ओके, और नाउ अगेन यहाँ पे आपकी कौन सी आ गई? बैक साइड रीडिंग आ गया, तो अगेन आर एल प्लस बैक साइड, आर एल प्लस बैक साइड दैट इज इक्वल टू एच आई, दैट इज इक्वल टू एच आई। तो यहाँ पे भी आपकी एच आई चेंज होगी। नाउ कैलकुलेट ऑल दी आर एल, चलो फटाफट कैलकुलेट ऑल दी आर एल, सभी आर एल फटाफट कैलकुलेट करो। इसके बाद हम दूसरी मेथड देखने वाले हैं, राइज एंड फॉल। एच आई आज तो आप तो आ जानी चाहिए, बिकॉज हमने ये थर्ड टाइम हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं, राइट। एच आई मेथड से ये न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल हम थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो आई गेस अभी आपको आ ही जाना चाहिए। कैलकुलेट आर एल्स फॉर ऑल दी पॉइंट। व्हाट इज चेक? चेक कैसे करोगे आपका रीडिंग सही है या नहीं? समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। Summation of backside minus summation of foreside is equal to last RL minus first RL। ये दोनों अगर आपका इक्वल आता है then your numerical is okay।
Okay, done. Now next, what we have to find? We have to find the gradient. Okay, this was this is your check. Check is equal to summation of back side minus summation of foresight is equal to last tardle minus first tardle. What is summation of back side? That is equal to 1.19. What is summation of foresight? That is equal to 9.475. What is last RL? See in your table. आपके टेबल में देखो. Okay. So what is summation of last RL? That is equal to 7.29. What is summation of first? Sorry. What is the first RL? That is equal to 15.57. So your check is okay. So that's why your numerical is okay. Okay. आपका numerical सही है. Okay. Now gradient between first and last point. You have to find gradient. Gradient मतलब क्या होता है? That is a slope, right? So we have to find gradient between first and last point. So difference in RL of first and last point. So this is your first RL, this is your last RL. So gradient is equal to difference in RL of first and last point upon difference between first and last point. First and last point के बीच का distance कैसे मिलेगा? You have chainage. आपके पास chainage है तो chainage में से आपको मिल जाएगा different distance between first and last point. Okay, we have chainage. Here it is a chain edge. Okay, this is a chain edge. Okay, तो उसपे से आपको मिल जाएगा distance between the first and last point, that is equal to 210. Okay, the distance is 210 meter, right? So your gradient is equal to 1 in 25.36. That's okay. Okay, this is a simple. You just have to put data in a equation. Now the next method, that is a rise and fall method. So prepare a table like this. This is a table for a rise and fall method. Okay, ये numerical अलग है. Just prepare a table like this. Okay, आपको ऐसे table बनाना है. Just prepare a table. Again, इस टेबल के अंदर यहाँ तक का टेबल आपका सेम रहेगा जो हम HI मेथड में करते हैं. ओके, सो दिस इज द सेम टेबल फॉर HI मेथड. यहाँ तक का हमारा टेबल इट विल बी रिमेन सेम एज अ HI मेथड. ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम ऐड करनी है. इंस्टेड ऑफ HI आपको यहाँ पे 2 कॉलम ऐड करनी है, दैट इज राइज एंड फॉल. These columns are for rise and fall. Again RL and remark. So draw a table, insert the reading for backside, intermediate side, foreside and chain edge. जो रीडिंग हमने HI में इंसर्ट किए वही सेम रीडिंग आप इस टेबल में भी इंसर्ट करो. मैं आपको राइज और फॉल कैसे आता है वो आपको मैं बताऊं. फटाफट इंसर्ट द रीडिंग्स इन अ टेबल.
Okay, insert reading in a table. Draw. Now rise and fall. ध्यान देना, यहाँ तक का टेबल हमारा सेम आएगा. ओके, यहाँ तक आपका सिर्फ न्यूमेरिकल है. नाउ राइज एंड फॉल. ओके, राइज एंड फॉल में क्या करना है, तो यहाँ पे लिसन. राइज मतलब क्या आएगा, प्लस. फॉल मतलब माइनस. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रीडिंग में से सेकंड रीडिंग को माइनस करना है. मतलब 0.680 माइनस 1.455 क्या आ रहा है, चलो करो फटाफट. ओके, so what we have to do, we have to subtract second reading from the first reading. That means 0.680 minus 1.455. We have to subtract second reading from the first reading. तो 0.680 minus 1.455. ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, बट ऑब्वियस आपका जो भी आंसर आएगा नेगेटिव आएगा, माइनस साइन आएगी. ओके, बिकॉज 0.68 इज लेसर देन 1.45, राइट. तो आपका जो भी आंसर आएगा, तो योर आंसर इज इक्वल टू 0.775. करके देखो, कैलकुलेटर लो, मोबाइल लो, कुछ भी लो और करके देखो. ओके, आपका आंसर आएगा 0.775. नाउ रिमेम्बर दैट, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है, तो आपको इस कॉलम में लिखना है, राइज वाले. राइज मतलब टेक रो, फॉल मतलब खाड़ो. मतलब અહીંયા શું છે, ये आपको क्या दिखा रहा है कि कहाँ आपका ग्राउंड है, वो ग्राउंड में कहाँ पे आपका स्लोप आ रहा है. ओके, और कहाँ पे आपके ग्राउंड में हिल आ रही है. ओके, सो यहाँ पे 0.680 minus 1.455, that is equal to 0.775 and it is negative, right. अगर नेगेटिव आ रहा है आपका आंसर, तो आपको फॉल वाले कॉलम में लिखना है. इफ योर आंसर इज पॉजिटिव, तो यू हैव टू राइट दैट आंसर इन अ राइज कॉलम. ओके, सो here 0.680 minus 1.445, that is equal to 0 point minus 0.75 आपको माइनस यहीं पे लिख देना है, आपको यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखनी है. ओके, बिकॉज दिस इज अ फॉल कॉलम. ओके, नाउ अगेन आपको क्या करना है, 1.45 माइनस 1.855. चलो करो, कितना आ रहा है, टेल मी द आंसर. व्हाट इज एन आंसर, टेल मी इन चैट बॉक्स. Okay, answer is equal to 0.4 and that is again it is a negative. Okay, again it is a negative आ रहा है, तो then it is again it is in a fall column. Okay, वो आपको कौन से कॉलम में लिखना है, fall वाले कॉलम में. Now again 1.855 minus 2.33, 1.855 minus 2.33. Okay, 1.855, 1.8 1.855 minus 2.33, दिस माइनस दिस. आंसर आपको कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे. अगर आपने आंसर यहाँ पे आपको एक रो छोड़ के आंसर लिखना है. अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आपके सभी आर रॉन्ग आएंगे. तो आपको यहाँ पे केयर रखनी होगी कि आपको जो आंसर आएगा, बिकॉज दिस माइनस दिस, तो आपको इसके इसी रो में लिखना है, इस रो में लिखना है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. दिस फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकेंड रीडिंग, जो आंसर आएगा दैट यू हैव टू राइट इन अ रो ऑफ सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग वाली रो में आपको आंसर लिखना है. ओके, पॉजिटिव आया तो राइस वाले कॉलम में, नेगेटिव आया तो फॉल वाले कॉलम में. ओके, चलो सबका यहाँ यहाँ तक 2.33 माइनस 2.88, तो योर आंसर इज इक्वल टू 0.55. अगेन इट इज अ नेगेटिव. अब इसके अंदर से माइनस नहीं करना है,
यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है, अगेन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 1.055 अगेन 1.055 माइनस 1.86 ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद नहीं रहता है तो आप पेंसिल से लिख लो साइड पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेबल है, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रीडिंग कैसे आया। ओके, वो आपको समझना ही होगा, राइट। Okay, so your reading is equal to 0.805 and again it is negative, तो आपको कहाँ पे लिखना है, फॉल वाले कॉलम में। Now again 1.86 minus 2.265, 1.86 minus 2.265 that is equal to 0.405। कैलकुलेटर लेके बैठो तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कौन सा रीडिंग कहाँ से आया। ओके, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए, अदरवाइज आप एग्जाम में आपका नहीं आएगा। ओके, सो नाउ अगेन ये रीडिंग आपको नहीं यूज करना है, तो फिर से 0.835 माइनस 0.945 और उसका आंसर आएगा -0.11 -0.11। नाउ अगेन दिस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, तो आपका आंसर आएगा 0.585। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा फॉल वाला कॉलम। अगर आपका पॉजिटिव एक भी रीडिंग अगर पॉजिटिव आता ना, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होता राइज वाले कॉलम में। हम दूसरा न्यूमेरिकल ऐसे लेंगे जिसमें राइज और फॉल दोनों आएंगे, ठीक है। तो सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर दिस न्यूमेरिकल, सेम थिंग जो हमने अगला एच आई वाला न्यूमेरिकल किया ना, उसके लिए सेम थिंग करो। ओके, हमने एच आई मेथड से किया, सेम न्यूमेरिकल कैलकुलेट विद द राइज एंड फॉल मेथड, सेम न्यूमेरिकल हम आपको राइज एंड फॉल न्यूमेरिक मेथड से कैलकुलेट करना है। तो अगेन मैंने आपको जैसे बताया था, ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ तक का टेबल आपका सेम आएगा। ओके, ये वाला टेबल आपका सेम आएगा, यहाँ पे आपके सिर्फ दो कॉलम आएंगे, दैट विल फॉर द राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल के दो कॉलम आएंगे, राइट। हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया था ना एच आई मेथड से, यस। हमने ये न्यूमेरिकल किया था विथ एच आई मेथड। ओके, ये न्यूमेरिकल हमने किया है एच आई मेथड से। तो सेम इसके अंदर यहाँ तक के रीडिंग आपको सेम लिखना है। इस एच आई की जगह पे आपको दो कॉलम बनाना है, एच आई वाला कॉलम नहीं आएगा, इसकी जगह पे आपको दो कॉलम बनाए, वन इज फॉर राइज, वन इज फॉर फॉल। यहाँ पे इसकी जगह पे आपको दो कॉलम बनाना है और आपको ये आर एल कैलकुलेट करने हैं। आर एल कैसे कैलकुलेट करने हैं, दैट आई विल शो यू। ओके, पहले आप राइज एंड फॉल के दो कॉलम बनाओ और कैलकुलेट करो। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपको लिखना है राइज वाले कॉलम में, अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आपको लिखना है फॉल्स वाले कॉलम में, और आपको रीडिंग यहाँ से लिखना स्टार्ट करने हैं, यहाँ से। ओके, सेकेंड रो के सेकेंड रीडिंग की रो में। ओके, चलो फटाफट राइज एंड फॉल, इसका आंसर बुक में नहीं है, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है और आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है। चलो फटाफट राइज एंड फॉल। ओके, फर्स्ट रीडिंग 0.565 माइनस 1.250, बट अब योर आंसर विल बी नेगेटिव, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब आपका रीडिंग यहाँ पे आएगा इस कॉलम में। क्या आंसर आ रहा है, चलो टेल मी इन चैट बॉक्स। 0.565 माइनस 1.250, क्या आंसर आ रहा है। ओके, आंसर इज 0.655। गुड। ओके, 0.655 और 0.685, दो दो लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ओके, तो मेजोरिटी इज 0.685, तो योर आंसर इज इक्वल टू 0.685 एंड इट इज नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे आपको नेगेटिव, तो वो आपका आएगा इस कॉलम में, फॉल वाले कॉलम में। नाउ अगेन 1.250 माइनस 1.675, अगेन वो भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो फटाफट 1.250 माइनस 1.675, ओके, तो आंसर इज 0.425। यस, आंसर इज 0.425 आएगा। कौन से कॉलम में आएगा, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव, तो इट विल बी ना फॉल कॉलम। ओके, तो बस अगेन ये रीडिंग आपको नहीं लेना है, फोर साइड आपको यूज ही नहीं करना है राइज एंड फॉल में। ओके, अगेन यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम 0.125, तो 0.125 माइनस 2.235, चलो क्या आ रहा है, 0.125 माइनस 2.345, सॉरी 0.125 माइनस 2.345, क्या आ रहा है आंसर। ओके, तो आंसर इज
2.22. Okay, and it is negative or positive, but obviously it is negative. Okay, तो negative वाला means कि again in a false column. Okay, now अब आपको क्या करना है, 0.500 minus 1.785. ओके, चलो। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1.285। सभी का आ रहा है, जिसका नहीं आया है, अगर अगर किसी का आ नहीं रहा है तो दे कैन आस्क मी इन अ चैट बॉक्स। ओके, किसी का आंसर नहीं आ रहा है या फिर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो दे कैन आस्क मी इन अ चैट बॉक्स। आप लोग मुझे पूछ सकते हो। व्हाट टेबल कंप्लीट। ओके, राइज फॉल। ओके, ओके, तो 0 जिसका नहीं आ रहा है, ओके, 0.565 माइनस 1.25। मुझे कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है मेरा। ओके, तो 0.565 माइनस 1.250, आंसर जो भी आएगा आपको लिखना है यहाँ पे, इस कॉलम में, इस कॉलम में। ओके, जो भी आंसर है आपको यहाँ पे। नाउ अगेन 1.25, दिस माइनस दिस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, अगेन आपका आंसर आएगा नेगेटिव, आपको लिखना है इस कॉलम में। फिर दिस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, आपको लिखना है इस कॉलम में। नाउ दिस फर्स्ट रीडिंग माइनस दिस सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग माइनस सेकंड रीडिंग, आपका आंसर आएगा नेगेटिव, यहाँ पे लिखो। नाउ दिस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग, आपको लिखना है यहाँ पे। अगेन 0.5 माइनस 1.785, रीडिंग आपको लिखना है यहाँ पे। नाउ लास्ट रीडिंग 0.785 माइनस 2.535, आपको रीडिंग लिखना है यहाँ पे। ओके, हो गए आपके सभी रीडिंग्स। तो दीज आर योर राइज एंड फॉल मेथड, ऑल आर राइज एंड फॉल। ओके, अब एच आई कैसे, हाउ टू कैलकुलेट एच आई बाई द राइज एंड फॉल मेथड। ओके, तो फर्स्ट आरएल यू नो, दिस वन इज योर फर्स्ट आरएल। फर्स्ट आरएल आपको यहाँ पे दिया, दैट इज इक्वल टू 15.757, 15.7 sorry 575, 15 point, this first RL is equal to, your first RL is equal to 15.575,
ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपका फॉल है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है आरएल के अंदर से, दिस इज योर आरएल। अगर आपका फॉल है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है रीडिंग, अगर आपका राइज है तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे तो हमारे सभी फॉल ही है, ओके, तो हर एक रीडिंग हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, 15.575 माइनस फर्स्ट रीडिंग। चलो टेल मी क्या आंसर आ रहा है। 15.575 आपका फॉल क्या आया था पहला रीडिंग का, क्या रीडिंग आया था, जो भी रीडिंग था, तो 15.575 माइनस योर दिस फॉल रीडिंग, ये जो रीडिंग आया ना वो वाला। टेल मी क्या आ रहा है, व्हाट इज एन आंसर। Answer is equal to 14.89. Okay, so your answer is equal to, yes, Vritik, right. Your answer is equal to 14.89. Your answer is equal to 14.89. तो यहाँ पे आएगा आपका 14.89। सी, ये वाला आरएल और ये वाला आरएल बोथ आर सेम। अगर आप राइज एंड फॉल से करो या एचआई मेथड से करो, आपके आरएल वाला आंसर, आरएल वाला कॉलम सेम आना चाहिए, ये वाला कॉलम आपका सेम आना चाहिए। नाउ 14.89 माइनस अगेन फॉल वाला आपका जो दूसरा, बस आपको सभी फॉल वाले रीडिंग आरएल में से सब्ट्रैक्ट करते जाना है, बिकॉज हमारे सभी रीडिंग फॉल में है। अगर राइज में होगे तो ऐड होगे, बिकॉज हमारे यहाँ पे सभी रीडिंग कौन से कॉलम में, फॉल वाली। तो आपको सभी रीडिंग आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना चाहिए, अरे सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, और आपका जो आंसर आएगा ना वो सेम ये होना चाहिए, सेम सेम ये वाला कॉलम आपका आना चाहिए। ओके, तो ये वाला न्यूमेरिकल आप खुद से कर लो इतना, और बाकी वाला जो चेक है दैट वी विल सी टुमारो। हम इसके लिए जो चेक है वो हम कल देखेंगे, अभी लीव नहीं करना है, मुझे अटेंडेंस लेनी है, तब तक आप ये कैलकुलेशन कर लो, आप लोग कैलकुलेशन कर लो, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। अटेंडेंस हो गई है, यू मे लीव नाउ, लेकिन ये आरएल आपको कैलकुलेट करना है, कल मैं किसी से भी पूछूंगी, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस आरएल्स, कैलकुलेट कर लेना। Okay, you may leave now, thank you।